Good morning, dear students. Today I am going to discuss with you the last lecture of Unit 1 Solid State. The different topics I have included in this lecture are electrical properties of solids, classification of solid on the basis of their conductivity, difference between metallic and electrolytic conduction, then metallic bonding with example of aluminium, band theory of metals, which will explain their conductivity behavior, effect of temperature on conductivity, and magnetic properties of a solids. So let us take one by one. First of all, you are well known with the fact that various substances have इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा. बहुत सारे सब्सटेंसेस में जब हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्ज की डेवलपमेंट होती है. ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या है, कंडक्टिविटी डिफरेंट रेंज की कंडक्टिविटी शो करते हैं. ठीक है, तो इस केस में हम उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे और उनके कंडक्टिविटी के बेस पे. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कंडक्टर. कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस whose conductivity is in between the range of 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7. 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7 ohm inverse per meter. ओके, ओम इनवर्स पर मिनट, ये आपकी कंडक्टेंस के जो है यूनिट्स हैं, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स. तो दो सब्सटेंसेस दोज आर नोन एज कंडक्टर्स. कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. मेटालिक कंडक्टर, फॉर एग्जांपल ऑल मेटल्स, दे आर, नाम से पता लग रहा है मेटालिक कंडक्टर्स मींस दे आर मेटल्स. सो दे आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. व्हाई? बिकॉज in these conductors conductance is being done, mean charge is being carried by electrons. Electrons are charge carrier here. Second type is electrolytic conductor, means electrolytes. Electrolytes आपने पढ़ा है, electrolytes वो substances हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन देयर मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट. ओके, सो मोल्टन एंड एक्वस स्टेट में जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं दोज आर आयनिक कंडक्टर्स, मींस दे प्रोड्यूस आयंस. सो दीज आर आल्सो नोन एज ionic conductors. So due to their dissociation they produce ions and those ions conduct electricity. For example, sodium chloride. Sodium chloride conduct electricity in its molten and aqueous state because it's dissociated to give sodium ion and chloride ion. So on passing electricity, these ion will move toward the opposite poles. Opposite poles means sodium that will move toward cathode, hence it is named as cation. Cat word is coming from cathode. Similarly, chloride will move toward anode, so it is named as anion. Anion is the name derived from anode. So during electrolysis there will be decomposition of a substance. So there is a little difference between these two types of conductor, which I will take in the next slide. Next is insulators. Second category, insulator. They are having very low, extremely low value of conductivities, which is within the range of 10 raised to power minus 20 to 10 raised to power minus 10 ohm inverse, meter inverse. Examples are plastics, woods, rubber, sulfur, phosphorus, etc. They can be included in this category. So such substances are known as insulator. Third category is semiconductors. Semiconductors are in between conductors and insulators. Okay, and further we can increase their conductivities by doping them with certain substances. पिछले लेक्चर में हमने डोपिंग के बारे में पढ़ा था एंड फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप एंड फी टाइप सेमीकंडक्टर हमने वहां पे देखी थी. तो कंडक्टिविटी कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ डोपिंग. तो देयर कंडक्टिविटी इज इन बिटवीन
10 to power minus 6 to 10 to power 4 means it is in between the conductors and insulator. कंडक्टर से कम है, इंसुलेटर से ज्यादा है. एंड एग्जाम्पल इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है, ये भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे. एक आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, दूसरे एक्सट्रिंसिक है. नाउ दिस इज डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. इसको जरा समझ के ध्यान से करना है. ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से this question is important. So what is difference between metallic conductor and electrolytic conductor? The question can be asked like this: what is difference between electronic conductor and ionic conductor? So one and same thing. Okay, so metallic conductor, the flow of electricity takes place without decomposition of the substance. Means metallic conductor, they conduct electricity in a solid state and they do not decompose on passing electricity. Means उनका breakdown नहीं होता है. For example, copper, aluminium, silver, we can pass electricity through them for number of years and there will be no decomposition of a substance. Whereas in case of electrolytic conductor, flow of electricity takes place due to decomposition of a substance. Means when we pass electricity, what happens? The substance gets decomposed and this process is known as electrolysis. Electrolysis means process of decomposition of substance by the passage of electricity through their molten and aqueous state. That is known as a आपका इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, तो इसमें स्पेशल टाइप का सेल हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. वो आप नेक्स्ट थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे उसके बारे में. तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस. एंड फर्दर आपने ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन एंड एक्वा स्टेट, वेयर एज metallic conductor they conduct electricity in solid state. Okay, next point is flow of electricity is due to electrons. Here electrons are flowing, so electrons are charge carrier in this case. In case of electrolytes, flow of electricity is due to movement of ions. अभी मैंने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल आपको बताया. ठीक है, the conductance decreases with increase in temperature. conductance decreases, घटती है कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं. why? because मेटल के केस में आप आगे पढ़ेंगे अभी कि जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स हैं दे आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ठीक है, तो ड्यू टू देयर ह्यूज वाइब्रेशन व्हाट हैपेंस? फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गेट्स हिंडर्ड, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है. एज ए रिजल्ट मेटल्स की कंडक्टेंस कम होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. इन केस ऑफ these electrolytes, conductance increases with increase in temperature. Why? This is because of increase in temperature. There are two factors, two values that will increase. First, kinetic energy of ions increases, ions move faster, and second, decomposition of substance further increases on increasing temperature. So here conductance increases, in this case conductance decreases. Okay, resistance की बात करें तो resistance offered by metal atom, that is due to vibrating kernels. ये kernels हम पीछे पढ़ चुके हैं metals में, आगे मैं फिर बताऊंगा आपको. So vibrating kernels they offer resistance toward the flow of electricity, and in this case resistance offered by these electrolytes is due to interionic attraction. Interionic attraction means जो आयंस हैं वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से वो फ्री फ्लो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, फर्दर विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्वेंट में कितनी विस्कोसिटी है, उसकी विस्कोसिटी भी क्या करेगी? आयन के मूवमेंट को अफेक्ट करेगी. ठीक है, तो दीज आर सर्टेन पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटालिक कंडक्शन डिफर्स. यहाँ पे मैंने इस स्लाइड्स में आपको दो चीजें समझाई हैं. ये एक मेटल का क्रिस्टल है, ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज ए क्रिस्टल ऑफ मेटल इन विच पॉजिटिवली चार्ज ये कर्नल्स हैं, और ये जो येलो कलर के आप देख रहे हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं.
हर एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और एक इलेक्ट्रॉन का सी बन जाता है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल हम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको दिखाऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज आर फ्री टू मूव, वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं। हेंस मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इन केस ऑफ आयंस, आयनिक सॉलिड्स, आयंस आर फिक्स इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयंस अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं, पढ़ा आपने, ये लैटिस साइड्स पे फिक्स होते हैं, सो दे कैन नॉट मूव, which means ionic solid do not conduct electricity in solid state, okay. But in molten state what happen, these ions become free. In molten state or in aqueous state these ions become free. Now what will happen on applying electricity? This pole is negative pole, this pole is positive pole. On applying electricity, this negative ion will move toward positive pole. Positive pole को हम क्या बोलते हैं, anode. Hence anion will move toward anode, and these negative ion they will move toward cathode. Cathode is negative pole, okay. So they conduct electricity only in molten and aqueous state. ये खास ध्यान आपने रखना है. And metal conduct electricity in solid state, ठीक है. Here conduction of electricity is due to movement of electrons, and in this case we have conductance of electricity due to movement of ions, okay. In this slide I have explained the metallic bonding in case of aluminium, how a metal crystal looks like. In case of aluminium we have 13 electron, 2, 8 and 3. 3 electron, these are valence electron, okay. So this is an atom of aluminium. Now 3 electron, these are being given by aluminium atom, and octet will have now 8 electron. These 3 electron get attracted toward this positively charged ion, okay. So these positively charged ions, they attract the immobile electron. So these positively charged ions, these are kernels, okay, and these electrons which are being donated by each atom of aluminium, they form a common sea or common pool of electron. Hence this metal is known as a electron gas model, okay. Which means in case of metals we have this type of a lattice structure, okay. Every element, every metal will have this type of a structure, electron gas model इसको हम बोलेंगे, okay. So bonding in metal यही होती है कि simultaneous force of attraction between positively charged metal ion which are known as kernel and mobile electrons. Natural सी बात है, positive charge negative को attract करेगा, ठीक है. तो simultaneously these electrons are being attracted by many kernels, okay, and hence this type of force is known as a metallic bond, and this is electron gas model of a metal atom, any metal. Now next, band theory of metals. In order to explain the conductance behaviors of a metal atom, a theory was given which is known as band theory. Band theory में हम बात करते हैं atomic orbitals की. Atomic orbitals of metals कहता है they are so close in energy that they form a band of molecular orbitals. ये आपने लास्ट ईयर MOT पढ़ा है, molecular orbital theory. उसमें आपने पढ़ा था कि atomic orbitals they combine, they intermix with each other to form new orbital which are known as a molecular orbital, ठीक है. और सेकंड बात आपने एक और पढ़ी थी कि number of molecular orbital formed are equal to number of atomic orbital combined. जितने आप atomic orbital mix करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, molecular orbital बनेंगे, ठीक है. तो इसी थ्योरी के बेस पे आपकी क्या है, जो आपकी बैंड थ्योरी ऑफ मेटल है, ओके. बैंड थ्योरी ऑफ मेटल इज बेस्ड अपॉन दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है. तो ये बोल रही है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं कैसे, बाई overlapping of atomic orbital, okay. And if n atomic orbital are combined, then n number of molecular orbital are formed.
ये मैंने अभी आपको बताया, जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ lithium, lithium is atomic number 3, 1s2 2s2, this is its ground state configuration. In this case there is formation of valence band, valence band by what, by the overlap of n number of 2s1 orbital। वैलेंस बैंड क्यों कह रहे हैं हम इसको, बिकॉज वैलेंस ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ 2s1 ऑर्बिटल ऑफ n एटम ऑफ लिथियम क्या करेंगे, आप उसमें ओवरलैप करेंगे, क्या बनाएंगे, वैलेंस बैंड बनाएंगे। ओके, एंड दिस बैंड विल बी हाफ फिल्ड, व्हाई, बिकॉज 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसका मतलब अगर लेट अस सपोज 10 एटम आपके आपस में मिक्स किए तो 10 ही क्या बने, एटॉमिक ऑर्बिटल बने। ठीक है, जिसमें से 5 आपके बॉन्डिंग होंगे, 5 क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो उनमें से भरे कौन से जाएंगे, बॉन्डिंग वाले, एंटी बॉन्डिंग वाले कैसे बच जाएंगे, खाली। ठीक है, तो ये +1 में आपने चीजें की हुई हैं। तो देयर आर on passing electricity what happens, these electron can flow, they can move into vacant orbitals, okay, which causes flow of electricity. Next element I have taken beryllium. In case of beryllium what happens, configuration is 1s2 2s2, the 2s orbital when it overlap with each other, so it will give you a valence band which is completely filled. Okay, valence band is completely filled in case of beryllium, but still beryllium is a good conductor of electricity as compared to lithium. Why, because in case of beryllium what happens, there is overlap with empty band which is formed by overlapping of a 2p orbitals. Okay, so empty band which is being formed by overlapping of 2p orbitals that overlap with 2s band, and this band is known as conduction band. Okay, so in case of beryllium there is flow of electrons from valence band which is being formed by mixing of 2s2 orbitals. Okay, and to the conduction band. Conduction band is the band which is formed by mixing of 2p orbitals. Okay, so hence it is better conductor than lithium. In the next diagram I have explained the formation of partially filled valence band in case of lithium. I have taken n number of atom of lithium which are having 2s1 configuration of their outermost shell. So on combining these atomic orbital we are having formation of a molecular orbital. This is called 2s band. Half of the band that is filled and half of the band that is empty. So हाफ फिल्ड जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, मींस यहां से फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका कहां होगा, वेकेंट ऑर्बिटल्स में होगा, अपर हाफ में होगा। ठीक है, सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजीली फ्रॉम लोअर हाफ टू द अपर हाफ। सो दिस इज केस ऑफ lithium. Okay, next is case of beryllium. In case of beryllium we have n number of 2s energy level, they are forming fully filled 2s band. 2s band is fully filled here, but what is happening, n number of 3n number of 2p orbital। 3y क्यों, क्योंकि p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, px py एंड pz। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n एटम थे तो जो आपके p ऑर्बिटल हैं वो कितने हो जाएंगे, 3n। तो 3n number of 2p orbital they combine to form a 2p band, and this 2p band, this is known as conduction band. Okay, so conduction band overlap here. In this case there is overlapping, here in this case we have overlapping. So this overlapping of a 2p band with 2s band makes beryllium a very good conductor of electricity. Okay, so we can say that in case of conductors valence band is either partially filled or
it overlap with the empty conduction band. ओके, ध्यान रखना है, वैलेंस बैंड या तो कहता है पार्शियली फिल्ड होगा, ऐसे सब्सटेंसेस कंडक्टर होंगे, या फिर जो आपका वैलेंस बैंड है वो पार्शियली ओवरलैप कर जाएगा किसके साथ, कंडक्शन बैंड के साथ। ठीक है, तो एग्जांपल अभी हमने देखे लिथियम में और बेरिलियम में। लिथियम में वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड है और बेरिलियम में जो वैलेंस बैंड है वो एम्प्टी कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर गैप बिटवीन वैलेंस बैंड, इफ गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दैट इज लार्ज, वो बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज conduction band, and the substance will behave like an insulator. Okay, and further, if gap between valence band and conduction band is small, then in that case what will happen, some of the electron they can jump from valence band to conduction band. ठीक है, as a result the substance will behave as a semiconductor. यहीं पे आपने ध्यान रखना है, टेम्परेचर के इफेक्ट हम आगे करेंगे। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर in case of semiconductor, conductivity will increase. Why? Because electron will acquire energy to jump from a valence band to conduction band, so they move easily and it will increase the conductance of a semiconductor with rise in temperature. So here I have given a diagram. In this diagram कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इंसुलेटर में देयर इज ए बैंड गैप, एनर्जी का गैप है, वैलेंस बैंड बहुत नीचे है, कंडक्शन बैंड बहुत ऊपर है, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वैलेंस बैंड और आपका कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है इसको फॉरबिडन गैप बोला जाता है। फॉरबिडन गैप, this gap is less, so electron can jump, some of the electron can jump, सारे तो नहीं कर सकते लेकिन some of the electron can jump, so semiconductor are in between insulator and conductors. Okay, in the next diagram ये आपको बताया हुआ है, metals के केस में क्या हो सकता है, partially filled valence band हो सकता है जैसा कि लिथियम में था, या फिर आपका वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप कर सकता है, तो देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड विद कंडक्शन बैंड जैसा कि बेरिलियम में हुआ। ओके, इंसुलेटर में दिस फॉरबिडन गैप दैट इज वेरी लार्ज, सो देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ओके, एंड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर दिस गैप इज स्मॉल, so electron, some of the electron can flow. Now effect of temperature on electrical conductivity. How a temperature affect the conductivity of substances? So first of all, in case of metal, अभी मैंने बताया conductivity decreases with increase in temperature. Why? Because increased hindrance of metal ion. अभी मैंने बताया आपको कि कर्नल जो हैं वो हीट मिलने पर वाइब्रेशंस उनकी बढ़ जाती है, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, एज ए रिजल्ट फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हिंडर्ड होता है। हिंडर्ड मतलब रुकावट उसमें पैदा हो जाती है। ठीक है, तो हिंड्रेंस की वजह से वो फ्रीली आपके फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए मेटल्स में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारा जो कंडक्टिविटी है वो घटती है। सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये मैंने अभी बताया। व्हाई? बिकॉज increase in temperature, more electron can jump from valence band to conduction band. Okay, in case of silicon and germanium, ये pure crystals की बात हम कर रहे हैं। In case of silicon and germanium, which are pure crystals and they are known as intrinsic semiconductor, electrons and holes are formed with increasing temperature. देखिए, सिलिकॉन आपका टेट्रावैलेंट है और जब ये बॉन्डिंग बनाएगा तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जस्ट लाइक कार्बन। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में सभी सिलिकॉन के एटम कोवलेंट बॉन्डेड में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाट हैपन, दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट्स थर्मली रिलीज्ड, मींस कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होना शुरू होते हैं।
ठीक है। अल्टीमेटली जब ये फ्री होते हैं तो ये अपने स्पेस को छोड़ के मूव करते हैं, एंड व्हेन दे मूव दे क्रिएट ए होल। सो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर and their conductivity increases with temperature. Why? Because on increasing temperature we have increase in number of holes and mobile electrons. On the other hand, conductivity of silicon and germanium that can also be increased by doping. ये मैंने already आपसे बात करी है doping के बारे में. So there is formation of a extrinsic semiconductor. Okay, so extrinsic semiconductor of two type, n type and p type. ये हमने पिछले लेक्चर में कर लिया हुआ है. ठीक है. Now last, magnetic properties of a solid. ठीक है. First of all, what is the reason due to which a substance shows magnetic behavior? Why it behaves like a magnet, or what is its behavior in the external magnetic field? So रीजन क्या है? डिफरेंट सब्सटेंसेस देखिए या तो एटम्स के बने हुए हैं या मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं. ठीक है. दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है. और आपने पढ़ा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी एटम में, दीज आर नॉट स्टेशनरी बट दे आर मूविंग in two different manner. First, around their own axis they are spinning, and number two, around the nucleus they are revolving. Okay, so there are two type of motion. One is orbital motion and one is spin motion. Okay, so electron being a charged particle, it behave like a micromagnet. Why? Because of its orbital motion and spin motion. Okay, it behave like a micromagnet. So electron is having a resultant permanent magnetic moment which is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है जिसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा. ठीक है. तो मैग्नेटिक मोमेंट्स आर वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड एरो लगा के. Therefore, a substance contain number of magnetic dipoles. किसी भी सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं. ठीक है. और इन्हीं के छोटे छोटे ग्रुप्स को, इन्हीं डाइपोल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स को हम मैग्नेटिक डोमेन्स भी बोलते हैं. ठीक है. आगे हम इस बात का जिक्र करेंगे. So, based upon the behavior of external magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई हम करते हैं तो सब्सटेंसेस कैसे बिहेव करते हैं उसके बेस पे हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं. नंबर 1 इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, these are weakly repelled by external magnetic field, means when we place them in a magnetic field they gets repelled. weakly repulsion होगा, मैग्नेट इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है. तो such substances have fully filled orbitals. ध्यान रखना है आपने, वो सब्सटेंसेस जिनके पास fully filled, ये सीधी सी पहचान है, वो सब्सटेंसेस जिनके पास fully filled orbitals होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? डायमैग्नेटिक होंगे. राइट. दे आर weakly repelled by magnet. Next is paramagnetic substances. Paramagnetic में these are attracted by the magnets, which are attracted by the magnet. उन सब्सटेंसेस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे और इस प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है. ठीक है. सो दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सीधी पहचान आपने रखनी है, इनके पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं ये आपके क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ? एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. ठीक है. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ आपकी जो हैं ऑक्सीजन के, कॉपर आयन, फेरिक आयन, क्रोमियम आयन, ये सारे क्या हैं? पार्शियली फील्ड इनके पास क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं. इस वजह से ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके. थर्ड कैटेगरी इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं? ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें उसके बावजूद भी इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है. सो दे बिहेव लाइक परमानेंट मैग्नेट. ओके.
वाई जो मेटल आयन है, कहता द मेटल आयन इन दीज सब्सटेंसेस दे आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म मैग्नेटिक डोमेन्स। मेटल आयन जो है वो मैग्नेटिक डोमेन्स बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में। मैंने अभी बात आपसे की, छोटे छोटे ग्रुप्स में वो इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे फॉर्म मैग्नेटिक डोमेन एंड ईच डोमेन एक्ट एज ए टाइनी मैग्नेट। हर डोमेन एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एंड उसका क्या होगा, डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो ईच डोमेन्स विल हैव अ डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट। So on placing the substance in magnetic field, जब ऐसे substance को हम magnetic field में रखेंगे, what happen? These domains gets oriented. These domains gets oriented in the direction of a magnetic field. Magnetic field की direction की तरफ ये orient हो जाएंगे, means north pole की तरफ in magnet का south pole चला जाएगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल की तरफ इन मैग्नेट का नॉर्थ पोल चला जाएगा, ठीक है। एंड दिस ओरिएंटेशन दैट परसिस्ट इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मीन अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लें उसके बावजूद भी ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स की ओरिएंटेशन है ये परमानेंटली सब्सटेंस में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एंड इस वजह से सब्सटेंस हमारा फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। एग्जाम्पल है इसमें क्रोमियम का ऑक्साइड। नेक्स्ट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं which are expected to possess पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। मींस ये वो सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डोमेन्स के बेस पे या तो पैरामैग्नेटिक एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं या फेरोमैग्नेटिज्म इनमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट वो एक्चुअली दे हैव जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट लाइक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिहेव करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ डोमेन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर डोमेन्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएं, व्हाट विल हैपन? दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। नॉर्थ साउथ अगर ये एक दूसरे का अरेंज होते रहे तो इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स अगर आपके एक दूसरे को कैंसिल करें अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये आपको पता है, ठीक है। तो नेट जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा सब्सटेंस का वो जीरो होगा। तो ऐसा सब्सटेंस कैसा होगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। तो मैग्नीज का ऑक्साइड, मैंगनीज का ऑक्साइड जो है वो आपका कैसा है? एंटी फेरोमैग्नेटिक है। नेक्स्ट इज फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में दे आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस लार्ज मैग्नेटिज्म on the basis of magnetic moments of domain, but actually they have small net magnetic moment, ठीक है। एक्चुअली इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ एक जो डोमेन्स है वो कैंसल आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक डोमेन जो है वो कैंसल आउट नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट सब्सटेंस में बचता है, लेकिन एक्सपेक्टेड से वो कम होता है, ठीक है। ऊपर वाले डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, नीचे वाले आपके ये मैग्नेटिक रहेंगे, मींस अट्रैक्ट होंगे पर उतनी ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ एक डोमेन इनमें क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स की वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं। तो मैग्नेटाइट इसमें एग्जांपल है। फेराइट्स इसमें आ जाएगा आपका। फेराइट्स आर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट आपने ये दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं। कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक मींस ये दो ऊपर वाले, ये दोनों सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं। कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मीन जब हम इनको हीट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है, ईच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस loses its ferromagnetism। सभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो परमानेंटली मैग्नेटाइज रहते हैं, ठीक है। कहता है ऐसी सब्सटेंस दे loses their ferromagnetism at a particular temperature which is known as Curie temperature।
सो क्यूरी टेम्परेचर क्या है? क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपना फेरोमैग्नेटिज्म लूज कर देता है। क्लियर? सो डिफरेंट जो आपके बिहेवियर है शोन बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पे दिखाए हुए हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आपके नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सो सब्सटेंस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट। ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में these magnetic domains they get aligned in a particular direction and they remain permanently aligned, hence ferromagnetic substance remain permanently magnetized। एंटी फेरो में क्या है? एंटी फेरो में जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो अपोजिट हैं, तीन इधर तीन इधर तीन इधर तीन इधर एंड सो ऑन। सो व्हाट इज हैपनिंग? नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इज जीरो, सो such substances are behaving like diamagnetic substances। ठीक है, एंड इन दिस केस फेरीमैग्नेटिज्म में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा है, दूसरी में कम है, मीन मैग्नीट्यूड में ये कम है, तो इस वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट सब्सटेंस का पॉजिटिव होता है। सो सच सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। सो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ आया होगा। In case of any queries or any doubts, you can call me anytime। स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ है 9816239935। ओके, थैंक यू।